Hi friends, myself Ankit. Welcome you in the physics coach. I hope you are learning a lot of quality stuff from us. We will learn a very important lecture today, that is cyclic process, slope of isothermal and adiabatic process. So in the previous lecture I told you various things like what is work, heat, first law of thermodynamics, so many stuff you learn. But I give you one question. Question क्या था? If I am drawing a PV curve मैंने ड्रॉ किया, then you need to tell me I am drawing several process. Okay, I am drawing several process. You need to tell me which one is the isothermal process, which one is the adiabatic process and which one is the polytropic process. तो ये क्वेश्चन था. इज देयर एनीवन हु सॉल्व दिस क्वेश्चन? एनीबडी एल्स हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या कोई बच्चा इसने सॉल्व किया हो? सो बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू नीड टू अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट, स्लोप of isothermal and slope of adiabatic process. If you know this concept, then you can easily tell which one out of these is the adiabatic process, which one is the isothermal process. Clear? So please see, just have a look what is the isothermal process. देखिए, so what is isothermal process? A process that is happening at constant temperature. Clear? So the equation is PV to the equal to constant. PV is equal to constant is the equation of isothermal process because temperature is constant. So what we will do? Differentiate both side. We will differentiate both side. Clear? We will differentiate both side. So what will be? We will differentiate this. D of PV is equal to D of constant. So when you differentiate, there is a two function P and V. We will separate it. इसको first मान लीजिए, इसको second मान लीजिए, then you will get P dV प्लस V dP इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट. क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट इज 0. सो यू विल गेट व्हाट आई एम राइटिंग हेयर, प्लीज सी, P dV इज इक्वल टू माइनस V dP. क्लियर? सो dP ओवर dV क्या होगा? माइनस P अपॉन V, वेयर V इज द वॉल्यूम, P इज द pressure. So you are seeing that slope of isothermal curve is minus P upon V. Clear? Now you need to calculate the slope of adiabatic process. So everybody knows what is adiabatic process? A process in which there is no exchange of heat between system and surrounding. That is the adiabatic process. So what is the equation of adiabatic process? Can anybody tell me? क्या होगी इक्वेशन बताइए? PV to the power gamma is equal to constant. Now we will do the differentiate on both side. क्या आएगा देखिए ध्यान से, differentiate PV to the power gamma is equal to differentiation of constant. We will differentiate both side. तो ध्यान से देखिए, we will take first P differentiation of second function gamma V to the power gamma minus 1 plus V to the power gamma differentiation of P is dP. इसका क्या हो जाएगा? 0. Clear? सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द स्लोप? कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से. क्या आएगा देखिए, इसको इधर ले जाएंगे, P गामा V टू द पावर गामा इज इक्वल टू माइनस V टू द पावर गामा dP. क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए dP यहाँ क्या होगा, देखिए ये डिफ्रेंशिएशन थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया. गामा V की पावर गामा माइनस 1, देन वी नीड टू डिफ्रेंशिएट V ऑल्सो, dV प्लस V. क्लियर? सो हेयर क्या होगा? P गामा V टू द पावर गामा माइनस 1 dV इज इक्वल टू माइनस V टू द पावर गामा dP. क्लियर? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो देन आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन. क्या होगा देखिए,
पी सेकेंड गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 डी वी प्लस वी टू द पावर गामा डी पी इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ से बताइए मेरे को व्हाट इज द स्लोप। स्लोप क्या होगा, डी पी ओवर डी बी क्या आएगा, डी पी ओवर डी बी क्या आएगा। टेल मी what will be the slope of PV curve in case of adiabatic process. It is minus gamma times of what, P upon V. You can check P upon V, V to the power gamma minus 1, यहाँ क्या है V to the power gamma, then you will get P upon V. So you can write, can you write this gamma times of minus P upon V? Can you write this in this way? क्या आप लिख सकते हैं ऐसे? Clear? So tell me the slope of adiabatic process. Slope of adiabatic process is gamma times of the slope of isothermal process. This is the slope of dp over dv isothermal process. Clear? This is the slope of isothermal process. This is the slope of adiabatic process. That is the reason this curve is more steeper than this curve. Clear? And I will draw, then you will tell me. very simple. यहाँ से समझ आ गया आप लोगों को। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी, डिस्टर्ब करिए, आस्क करिए, बीच में ही बोलिए। क्लियर? सो लेट्स सी। आज थोड़ा गला ख़राब है, ठीक है, थोड़ा मैनेज करिएगा। वी आर ड्राइंग द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। क्लियर? वी आर ड्राइंग द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। Clear? We are doing a compression process. Compression process means by increasing the pressure, volume is decreasing. Clear? So I am doing several process and combining all the process. I am drawing on a single PV curve. So I draw this curve. I draw this curve. I draw this curve. I am doing several process. So you need to tell me which one is the isothermal process, which one is, ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? JEE मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये बताना है which curve is of isobaric curve, which one is of isothermal process, which one is a polytropic process, which one is a adiabatic process. क्लियर? सो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए सबका इनिशियल स्टेट क्या है। इनिशियल स्टेट क्या है, सभी का सेम है, और फाइनल स्टेट भी क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? समझ आ गया आपको? देखिए ध्यान से, पहले ये देखिए फर्स्ट वाला इनिशियल। देखिए आप, प्रेशर क्या है यहाँ पर, बढ़ रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दिस इज द व्हाट, कैसा प्रोसेस है, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग। Pressure is increasing means temperature is also increasing. Then this process is known as isochoric process. Isochoric process. तो पहला वाला क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इज द isochoric process. क्लियर? फिफ्थ देखिए, फिफ्थ देखिए आप यहाँ से, देखिए यहाँ से मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, इनिशियल टू फाइनल. क्लियर? नाउ लुक एट हेयर, द वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. यहाँ क्या वॉल्यूम, देखिए यहाँ वॉल्यूम क्या है, V1, एंड व्हेन यू मूव हेयर द वॉल्यूम इज V2, दैट इज लेस देन V1. सो दिस प्रोसेस इज undergoing what, when pressure is constant. So when pressure is constant then the process is, कैसा प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस. क्लियर? अब देखिए ध्यान से, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ देखिए, पॉलीट्रॉपिक बहुत आसान, आई विल टेल यू. जस्ट टेल मी फोर्थ वाला कर्व देखिए और सेकेंड वाला कर्व देखिए. टेल मी विच कर्व इज मोर स्टीपर एंड विच कर्व इज हैविंग द मोर स्लोप. सेकेंड और फोर्थ में देखिए, तो देखिए आपको कभी ये समझ में आएगी स्लोप कैसे देखते हैं. ध्यान से देखिए, इन दो कर्व को मैं अलग से सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूँ. आई एम ड्रॉइंग हेयर. देखिए ध्यान से, काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आता. सेकेंड और फोर्थ देखिए, आई एम ड्रॉइंग हेयर. ध्यान से देखिए, दिस इज दी कर्व सेकेंड, दिस इज द कर्व फोर. क्लियर? नाउ यू नीड टू टेल मी, देखिए ध्यान से, किस विच कर्व इज मोर स्टीपर, जिसका स्लोप क्या है ज़्यादा. ध्यान देखिए,
एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस मान ली मैंने, ये एक्स एक्सिस है, एंड आई एम ड्रॉइंग अ टेंजेंट। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए और यहाँ करिए, देन यू विल सी दैट स्लोप, इसका जो स्लोप है फोर्थ कर्व का, दैट इज़ लेसर देन द स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व। और आप देख भी सकते हैं कि ये जो कर्व है सेकेंड कर्व, इसका स्लोप क्या है, देखिए टेंजेंट मेरा, ये मेरा हैंड क्या है, टेंजेंट है, इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप क्या है, फोर्थ कर्व से ज़्यादा है। देखिए इसका कर्व, इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स एंड दिस कर्व, इसका स्लोप कितना ज़्यादा है, गामा टाइम्स। अगर निकालना हो तो क्या निकालें, गामा का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके स्लोप में। फॉर एग्जांपल ये जो कर्व है फोर्थ वाला, इसका स्लोप मान लीजिए -30 है, -30 डिग्री। क्लियर। नाउ यू नीड टू टेल मी व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व। इस कर्व का स्लोप क्या होगा, कुछ नहीं करना, गामा का मल्टीप्लाई करना है -30 में। फॉर एग्जांपल गामा की वैल्यू है 1.5, तो मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट द स्लोप ऑफ दिस कर्व। क्लियर, बहुत आसान है, समझ में आ गया किसी को कोई डाउट। सो कभी क्वेश्चन में आए तो सेकेंड कर्व क्या होगा, देखिए सेकेंड वाला क्या होगा आपका, दिस इज दी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। और फोर्थ वाला क्या होगा आपका, क्या होगा देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर, क्लियर एवरीवन। किसी कोई डाउट यहाँ तक बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के मिड का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट इज इन बिटवीन आइसोथर्मल एंड द एडियाबैटिक। सो कर्व 3 क्या होगा आपका, कर्व 3 क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक process, polytropic process and the value of polytropic index, जैसे आपने करा ना पीवी की पावर गामा, इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखिए इक्वेशन ऑफ, आई होप यू हैव नोट डाउन दिस ऑल दिस थिंग्स। क्लियर। सो प्लीज सी, पीवी की पावर गामा, ये किसकी इक्वेशन थी, एडियाबैटिक प्रोसेस की। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट क्या था, ये किसकी इक्वेशन थी, आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो, मान लीजिए ये भी क्या है, पी वी का इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। मान लीजिए वी आर डूइंग सर्टेन प्रोसेस, यहाँ भी मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर मान लिया, यहाँ भी मान लिया, जस्ट आई एम टेकिंग सी। क्लियर। लेकिन अगर इक्वेशन पूछे कोई पी वी की और गामा, ये क्या होगी इक्वेशन, एडियाबैटिक प्रोसेस की। बट इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सो हाउ विल यू कैलकुलेट, घबराना नहीं है, इस गामा को रिप्लेस कर देना है सिंपल के से, सिंपल। तो इक्वेशन किसकी हो गई, व्हाट, के की। मान लीजिए इफ़ आई एम डूइंग दिस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कुछ नहीं करना, इसको सी के इक्वल कर देना है। क्लियर, समझा गया आपको। नाउ इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी कम टू द प्रोसेस, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस। सो कैन एनीबडी टेल मी, देखिए साइक्लिक प्रोसेस नाम से समझ में आ रहा है, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस आर प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पॉइंट ए से स्टार्ट करें एंड यू रिटर्न बैक टू द पॉइंट ए, this is the cyclic process. So you can note down in a cyclic process, you can note down the definition of cyclic process. What is it? Cyclic process, please note down the definition. Process, write down, process having initial and final state are same. क्लियर। ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होती है, सेम। सो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, बट बिफोर डैट
आपको स्टेट के बारे में पता होगा, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज प्रोसेस, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी को नहीं पता प्लीज़ वॉच द प्रीवियस लेक्चर, क्लियर। सो हैव अ लुक व्हाट डज इट मीन्स कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है। मतलब देखिए ध्यान से, आई एम डूइंग सर्टेन प्रोसेस and this process consists of various thermodynamic process। मैं एक बड़ा सा प्रोसेस कर रहा हूँ and this process is made up of several thermodynamic process। so those processes are, पहला क्या है, let us suppose this is process 1, this is process 2, this is process 3। clear everyone। अब ध्यान से देखिए, हैव अ लुक, किसी को डाउट प्लीज आस्क मी फर्स्ट। तो देखिए ध्यान से, दिस इज द इनिशियल स्टेट, आई एम गिविंग विद 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, जस्ट नोटेशन। यहाँ इनिशियल स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, सेकेंड इंटरमीडिएट स्टेट, देन फाइनल स्टेट। क्लियर। यहाँ से चले और वापस यहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ से चले और वापस यहीं आ गए, देख रहे हैं ध्यान से। तो मान लीजिए, देखिए फर्स्ट से 2 क्या है, कैसा प्रोसेस है 1 to 2, क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, देखिए प्रेशर इज कांस्टेंट। सो 1 to 2 क्या है, कैसा प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। 2 से 3, देखिए 2 से 3 कैसा प्रोसेस होगा, देखिए स्लोप किसका है, स्लोप इसका ज़्यादा है 2 से 3 वाला, इसका स्लोप क्या है। अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बस गेस्चर बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ध्यान लगाना है। लेट अस सपोज 2 से 3 क्या है, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और 3 से 1 क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपसे कोई इस क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज़ द वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। कोई आपसे पूछता है हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन निकालना है, तो काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत इजी केस से बताता हूँ आपको, ये तो आप थोड़ा दिक्कत हो जाएगी इसमें, और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरा प्रोसेस ऐसे है, ये मेरा प्रोसेस है। अब थोड़ा क्लियर होगा आपको, प्रेशर, वॉल्यूम, दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, दिस इज सर्टेन प्रोसेस, दिस इज अनदर प्रोसेस, दिस इज अनदर प्रोसेस। फाइनली माई सिस्टम इज कमिंग बैक, देखिए यहाँ से चला, फिर यूँ गया, फिर वापस अपनी स्टेट पे आ गया। तो काफ़ी लोगों ने आपसे कहा होगा प्लीज़ कैलकुलेट द वर्क डन, इसका वर्क निकाल लीजिए, इस साइकिल का क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। वर्क क्या होता है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ द साइकिल, साइकिल का एरिया निकाल लीजिए, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, एंड यू विल गेट द वर्क डन। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन साइन क्या लोगे, ये तो क्लॉकवाइज साइकिल है। कैसी साइकिल है, क्लॉकवाइज। मान लीजिए साइकिल ऐसे ना होके एंटी क्लॉकवाइज हो गई, if the cycle is anti-clockwise, then how will you calculate the work done? You will calculate again the area of cycle, but what will be the sign? So I am telling you that. Clear? तो first we will go to the trick, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। First we will go to the main process. प्रोसेस को समझते हैं पहले। देखिए ट्रिक्स वगैरह तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको मेरा मानना है कि कंसेप्ट फर्स्ट आना चाहिए। कंसेप्ट ही नहीं पता होगा देन यू कांट अप्लाई एनी ट्रिक्स। ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर? एंड दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम एट फर्स्ट स्टेट इज V1, दिस इज V3 और V3 इज इक्वल टू V2। अब देखिए ध्यान से देखिए, वी आर डूइंग अ प्रोसेस इन अ क्लॉकवाइज मैनर। तो इसका एरिया कैसे आता है, कैसे साइन लेता है, आई एम टेलिंग यू। तो टोटल वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन इन द इंडिविजुअल प्रोसेस।
वर्क डन इन 1 to 2, 2 से 3 प्लस 3 से 1। क्लियर। अब देखिए 1 से 2 में मैंने आपको बताया था वर्क डन कैसे निकालते हैं। अगर आपको कर्व दिया हो, इफ सम कर्व इज गिवन, देन हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन एरिया अंडर द कर्व। तो देखिए 1 से 2 में वर्क क्या होगा, ये होगा ना, होगा, देखिए ध्यान से, इट विल बी द वर्क डन ना। क्लियर, सुना गया। तो यहाँ से आपको ये वर्क डन W12 मिल जाएगा। W23 कैसे मिलेगा, देखिए W23 क्या होगा, W12 आपको मिल गया, यू गेट 2 से 3 वर्क डन क्या होगा, ध्यान से बताइए, जल्दी बताइए, ध्यान से बताइए। 2 से 3 फोकस, 2 से 3 क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एंड वर्क डन क्या होगा, व्हाट, इंटीग्रल PD भी होता है, आपने पढ़ा होगा। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन वर्क डन इज 0, देयर विल बी नो वर्क। क्लियर, समझ आ गया। तो वर्क नहीं होगा, देन जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, देख कहाँ जा रही हीट, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर, दैट आई विल टेल यू लेटर। तो 2 से 3 मिल गया। नाउ 3 से 1, टेल मी 3 से 1 में वर्क का साइन क्या होगा, ध्यान से देखिए 3 से 1 में देखिए एरिया अंडर कर्व निकालिए, तो क्या होगा, ऐसे तो होगा, यही तो होगा वर्क डन, एरिया अंडर 3-1 कर्व। नाउ सी यहाँ क्या है, देखिए प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मीन्स कैसा वर्क है, ये कंप्रेशन वर्क। और कंप्रेशन वर्क सिस्टम नहीं कर रहा, सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। सिस्टम के ऊपर वर्क कौन करता है, सराउंडिंग। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, देन दैट इज नोन एज व्हाट, here in this case I am telling you that is the work done on the system, and in this case final volume is lesser than the initial volume, so work will be negative। तो यहाँ जो भी आप वर्क निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व आप निकालेंगे, मान लीजिए जो भी आएगा आपने निकाल लिया, then you have to take the sign also। तो मैंने आपको बताया था while adding the work you need to be cautious and consider all the sign, आपको सभी साइन को कंसिडर करना है, देन ऐड। क्लियर। तो नेट वर्क डन क्या होगा, W12 देखो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे, प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 से 1। मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल यही है कि आपने जो एरिया निकाला है, और साइन नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने जो साइन कन्वेंशन लिया था उसमें क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, दैट्स वाई कंसिडर इट हेयर नेगेटिव। क्लियर, किसी कोई डाउट। तो यहाँ से देखिए वर्क निकलेगा, वर्क क्या आएगा, W12 माइनस W31। समझ आ गया। अब मुझे इतना बताइए देख के, W12 W31 से ज़्यादा होगा या फिर क्या होगा, फ्रॉम द फिगर इट लुक्स W12 इज ग्रेटर देन W31। ध्यान देखिए, प्लीज़ फोकस। देखिए वर्क डन एरिया कौन सा ज़्यादा होगा, यही तो ज़्यादा होगा। देखिए एरिया क्या है, 1 से 2 वाला एरिया ये है, क्लियर। और 3 से 1 वाला एरिया क्या है, 3 से 1 वाला जो एरिया है आपका, दैट इज एट, ये है आपका, क्लियर। दिस इज द एरिया फॉर द प्रोसेस 3 to 1, ये पूरा एरिया। तो विच वन इज मोर, दिस एरिया इज मोर। इफ द एरिया इज मोर देन वर्क डन इज ऑल्सो मोर। क्लियर। सो दैट इज द रीजन in the cyclic process, in the clockwise cycle, work done in a cycle is considered to be positive। तो देखिए W12 माइनस W31 करेंगे तो इस पूरे के पूरे एरिया में से, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका प्रोसेस था, यहाँ बना देता हूँ मैं आपको, ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा एरिया है। इस पूरे के पूरे एरिया से आप अगर इतना एरिया काट देते हैं, इतना एरिया माइनस ही तो कर रहे हैं आप इस प्रोसेस का, इस बड़े से एरिया से अगर आप इतना एरिया सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्लियर, देन यू विल गेट दिस एरिया। रिमेनिंग एरिया क्या होगा, यही तो होगा, क्लियर।
इसीलिए आपसे कहा गया था कि जो वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस द एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द साइक्लिक कर्व, साइकिल कर्व, जो भी कर्व है, जो भी साइकिल है, उसका एरिया निकाल दीजिए, देन यू विल गेट द वर्क डन. बट बी कॉशियस व्हेन द साइकिल इज क्लॉकवाइज. व्हेन द साइकिल इज क्लॉकवाइज यू हैव टू टेक, क्लॉकवाइज साइकिल होगी, देन यू नीड टू टेक द वर्क डन टू बी पॉजिटिव. व्हेन द साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए साइकिल ऐसे ना हो के, इस साइकिल का नेचर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज नेचर, ऐसे हो, देन साइन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और साइकिल कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? एनी डाउट? किसी कोई डाउट बताइए, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट. So if you have any doubt, please ask me. The lecture is over. So what we learned today? We learned cyclic process. We learn so many stuff like slope of isothermal curve, slope of adiabatic curve, and we also learn in which process the work is more. The work is more in the adiabatic process when it is in compression mode. Clear? So if you like this video, please like only when you like, okay? If you do not like, please don't like, okay? And if possible, please share to your peers, share to the needy person, then it will help that people who don't afford costly education. Clear? So please help them through this video, and if you have any doubt still, you can ask me in the comment section. Thanks a lot. Thank you.